Good morning, everyone. My name is Aarti Gupta, and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is From the Footprint, Class 7, and the chapter is From the Geography, Understanding the Earth. So, Understanding the Earth. Newsmaker Norman L. Bowen is considered as one of the pioneers in the field of experimental petrology. पेट्रोलॉजी वो लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं रॉक्स के बारे में. ही इज पर्टिकुलरली नोन फॉर कंडक्टिंग स्टडीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ इग्निशियस रॉक. तो इनको किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने स्टडीज करी इग्निशियस रॉक के बारे में. एट ए ग्लैंस द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर. अर्थ को 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर में डिवाइड किया गया है. क्रस्ट, mantle, core. Crust, the solid outermost layer of the earth composed of rocks and minerals is known as crust. तो जो outermost layer होती है अर्थ की, जिसमें rocks और minerals होते हैं, वो होता है crust. हम trust कर सकते हैं किसी को अपना minerals या ornaments देते हुए, इसलिए ये trust से आप याद कर सकते हैं crust. Mantle. The second layer of the earth is mantle. The innermost layer of the earth is core. जो innermost layer होती है अर्थ की, वो क्या होती है? core. The earth's crust consists of a various variety of rocks and minerals. जो अर्थ का crust है, उसमें variety of rocks और minerals होते हैं. The rocks formed by the cooling and solidification of hot lava and magma are called igneous rock. जो rock magma या hot lava के cool होने पर जब solidify होते हैं, ठोस होते हैं, तो उन्हें igneous rock कहते हैं. Fragments of rocks carried by running water, wind and moving ice get deposited in the layer to eventually form sedimentary rocks. जो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, रॉक के छोटे छोटे पीस होते हैं, वो वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू या मूविंग आइस के थ्रू डिपॉजिट्स होने लग जाते हैं लेयर बाय लेयर, और इन्हीं रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक. When existing igneous and sedimentary rock changes their chemical and physical form due to intense heat and pressure, they are known as metamorphic rock. तो आप ये कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का केमिकल एंड फिजिकल चेंज होता है. The cyclic formation and development of 3 types of rocks is known as rock cycle. जैसे आपका वाटर साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, वैसे ही रॉक का साइकिल होता है, जिसमें ये साइक्लिक फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होती है इन 3 टाइप्स के रॉक्स की, और इसी को कहते हैं रॉक साइकिल. Look at the figure now. Observe the part of an apple. Notice if the parts resemble the interior structure of the earth. Imagine the apple as a model of the earth interior and label the different layer found inside the earth in the given blanks. आपको ये एप्पल जो है, ये एप्पल को आपको एज अ अर्थ ट्रीट करना है. तो एज अ अर्थ आप कैसे बताएंगे कि ये क्या होता है? So the outer part you can say this is crust. Now the inner part is mantle, and this one is outer core, and the last one is your inner core. We have earlier learned that the earth is about 4 to 5 billion years old. हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि अर्थ कितने साल पुरानी है, 4 to 5 billion years old. Various gases and dust particles in space cool down eventually to form the structure of earth.
तो बहुत सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स जो स्पेस में है वो धीरे धीरे ठंडे हुए, जिससे क्या बना, स्ट्रक्चर बना अर्थ का. Since the time of its origin, the Earth is continuously experiences change, both inside and outside its surface. This it is therefore called a dynamic planet. क्योंकि जब अर्थ का ओरिजिन हो रहा था तो अर्थ कॉन्टिन्यूसली चेंज का एक्सपीरियंस कर रही थी, अपने इनसाइड, अपने कोर में, मेंटल में, और इवन दो क्रस्ट में भी. इसलिए इसको कहा गया डायनामिक प्लैनेट. Geology is the science which deals with the study of structure of earth. जियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर अर्थ का. Experts called geologists studies the formation and structure of the interior of the earth. और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट. Structure of the earth. If you cut an onion, you will notice that it has layers that are one inside another. Similarly, the earth is divided into three concentric layers: crust, mantle and core. Let us discuss them. तो जैसे हम अनियन को कट करते हैं तो हम देखते हैं लेयर के ऊपर लेयर होती है, ऐसे ही अर्थ को तीन कॉन्सेंट्रिक लेयर में डिवाइड कर दिया गया है. मतलब एक के बाद एक लेयर में डिवाइड कर दिया गया है. पहली थी क्रस्ट, दूसरी सी मेंटल, and the third one is core. Crust, the solid outermost layer of the earth composed of rocks and mineral is known as crust. हमने पहले ही पढ़ा है जो सॉलिड आउटरमोस्ट लेयर है अर्थ की, जो रॉक्स और मिनरल से बनी है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट. It is an extremely thin layer and its average thickness varies between 8 किलोमीटर to 50 किलोमीटर. और ये बहुत ही ज्यादा थिन लेयर होती है और इसकी जो थिकनेस होती है वो 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर होती है. द क्रस्ट कंप्राइजेस टू डिस्टिंक्ट लेयर. क्रस्ट में दो लेयर और आती है. द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जिसको बोलते हैं साइल. द लोअर ओशन क्रस्ट ऑफ सीमा. It forms the uppermost layer of the earth crust in the continental area. जो ये वाली आपकी अपर मोस्ट लेयर है ये कॉन्टिनेंटल एरियाज में होती है. इट्स थिकनेस इज अप टू 50 किलोमीटर और इसकी थिकनेस 50 किलोमीटर तक होती है. इट कंसिस्ट ऑफ लाइटर रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्मुनिया या एल्मुनियम, इसलिए इसको बोलते हैं सिलिका प्लस एल्मुनियम या एल्मुनिया. द लोअर ओशनिक क्रस्ट और सीमा. इट इज ए कॉन्टिन्यूस लेयर, और ये कैसी लेयर होती है, कॉन्टिन्यूस लेयर होती है. इट मे रेंज फ्रॉम ए फ्यू मीटर टू 10 किलोमीटर इन थिकनेस, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 10 किलोमीटर की थिकनेस होती है. द मेन मिनरल ऑफ दिस लेयर आर सिलिका एंड मैग्नीशियम. दैट इज, इसलिए इसको बोलते हैं सीमा. तो सिलिका तो दोनों में कॉमन है, सिर्फ एल्युमिनियम आपका आउटर में है और मैग्नीशियम आपका इनर में है, लोअर में है. नाउ द सेकेंड लेयर इज मेंटल. द मेंटल और द मीसोस्फेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ. या तो इसको मेंटल बोले या मीसोस्फेयर. ये आपकी कौन सी लेयर होती है, सेकेंड लेयर होती है अर्थ की. It is located beneath the crust and its average depth is up to 2900 किलोमीटर. ये आपकी क्रस्ट के नीचे होती है और इसकी एवरेज थिकनेस क्या आप बोल सकते हैं, वो होती है 2900 किलोमीटर. The temperature of the mantle is extremely high and it contains molten magma which comes to the surface during volcanic eruption as lava. तो इसका टेम्परेचर जो होता है मेंटल का वो ज्यादा एक्सट्रीमली हाई होता है. क्यों, क्योंकि इसके अंदर मोल्टन मैग्मा होता है. और ये कब आता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है लावा का. अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्रस्ट है, द आउटर मोस्ट पार्ट, फिर उसके बाद मेंटल है, फिर आपका आता है आउटर कोर एंड देन इनर कोर.
ये आपके सारे लिथोस्फीयर में है, आपके ये सारे के सारे आते हैं पार्ट। इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल एंड सीमा साइल। दिस मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। अब मेंटल्स भी 3 लेयर में डिवाइड है, अपर मेंटल, मिडल मेंटल एंड लोअर मेंटल। The lithosphere or outer sphere of solid rock include the crust and the uppermost solid part of the mantle. जो लिथोस्फेयर है या आउटर स्फेयर है वो सॉलिड रॉक इंक्लूड करता है क्रस्ट में, और जो अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट मेंटल का। Did you know the middle mantle extends up to 300 किलोमीटर in depth? जो मिडल मेंटल है वो 300 किलोमीटर है डेप्थ में, उसकी गहराई 300 किलोमीटर है। ड्यू टू इंटेंस हीट द रॉक्स हेयर आर पार्शियली मोल्टन एंड देयरफॉर इन अ फ्लो स्टेट। दिस लेयर इज नोन एज द asthenosphere. In the Greek, asthenos means to flow. तो जहां यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो मोल्टन होते हैं, पिघले हुए होते हैं। और जब कोई चीज पिघली हुई होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह इजिली फ्लो कर सकती है। तो ग्रीक में इसको बोलते हैं स्टेनोस्को टू फ्लो, इसलिए इसका बना स्टेनोस्फेयर। नाउ द थर्ड वन इज कोर। The innermost layer of the earth is known as the core और द बैरिस्फीयर। जो इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की उसको कोर कहते हैं या बैरिस्फीयर कहते हैं। बैरिस्फीयर द हैवी इंटीरियर पोर्शन होता है अर्थ का। इट इज अबाउट 3500 किलोमीटर इन थिकनेस। तो हमने पढ़ा कि मेंटल 2900 किलोमीटर थिकनेस का होता है और ये 3500 किलोमीटर थिकनेस का होता है and goes down to the depth of 6370 किलोमीटर। ये स्टार्ट कह सकते हैं आप, ये स्टार्ट होता है 3500 से 6370 किलोमीटर तक। It is mainly made up of heavy metals, especially nickels and iron, ferrum, and thus is known as knife. तो कोर है तो बहुत स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग है तो हमको किससे काटना पड़ेगा चीजें, नाइफ से। तो नाइफ, तो इसमें क्या क्या मिलता है, निकल एंड आयरन। दिस गिव्स द अर्थ इट्स मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से ही इसको क्या मिलती है अर्थ को, मैग्नेटिक फील्ड। The temperature in the core ranges from 3000 डिग्री सेल्सियस to 6000 डिग्री सेल्सियस। जो कोर का टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। The center core has extremely high pressure and temperature. जो सेंटर कोर है उसमें एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी होता है। Rocks and minerals. The earth crust consists of variety of rocks and minerals. हम देखते हैं कि अर्थ की क्रस्ट में हमें बहुत तरह के रॉक्स और मिनरल्स मिलते हैं। A mineral is a naturally occurring inorganic substance which contain one or more element with defined physical and chemical property. The study of minerals is known as mineralogy. तो जो मिनरल होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो सब्सटेंस खराब नहीं होते और जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं और उनकी खुद की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। द स्टडी ऑफ मिनरल्स, जो स्टडी होती है मिनरल्स की उसको कहते हैं मिनरलॉजी। Quartz, feldspar, mica and so on are the common rock forming minerals. तो जो क्वार्ट्स है आपका, फेल्डस्पार है और माइका है, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल से। रॉक्स, rocks are natural masses of minerals matters in the crust of earth. जो रॉक्स है वो नेचुरल मासेस हैं मिनरल्स के, जो कहाँ होते हैं, आपकी क्रस्ट पर, अर्थ की। They are composed of one or more minerals and include the hard and compact rock
like granite and diamond, as well as loose particles such as clay, mud and sand. तो ये जो रॉक्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं एक या एक से ज्यादा मिनरल के, और ये इंक्लूड करते हैं हार्ड और कॉम्पैक्ट रॉक भी, जैसे ग्रेनाइट और डायमंड बहुत हार्ड होता है, और कुछ रॉक्स ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये लूज पार्टिकल्स में होते हैं, जैसे क्ले, मड और सैंड. रॉक्स कैन हैव डिफरेंट कलर्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स. हमने देखा है रॉक्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, और उनका टेक्सचर भी डिफरेंट होता है. Rocks which contain a particular metallic mineral in large quantity are known as ores. जो rocks के पास सबसे ज्यादा metallic minerals होते हैं उनको कहते हैं ore. For instance, bauxite is an ore of aluminium and hematite is an ore of iron. तो जो बॉक्साइट है वो ओर है एल्यूमिनियम का, और जो हेमाटाइट है वो ओर है आयरन का. Classification of rocks. Geologists have classified rocks into three major groups: igneous, sedimentary and metamorphic. फॉर्मेशन के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से, और वो किस तरह का मिनरल है उसके हिसाब से. Igneous rock. The word igneous is derived from the Latin word ignis, means fire. जो igneous word है वो लैटिन वर्ड से आया है ignis, और उसका मतलब होता है फायर. It refers to rocks formed by cooling and solidification of hot lava and magma. तो ये कैसे बनते हैं रॉक्स? जब कूल हो जाते हैं और कूल होके ठोस या सॉलिड हो जाते हैं, जब हॉट लावा और मैग्मा बाहर आता है वॉल्केनिक इरप्शन के बाद. These rocks are still being formed due to volcanic activity. ये रॉक्स अभी भी मिलते हैं क्योंकि कुछ जगह पे अभी भी वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है. Since they were the first to be formed, they are also referred to as primary rock. क्योंकि ये पहले बनते हैं इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी रॉक. जो इग्निशियस रॉक है उसी को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं. On the basis of origin, igneous rock may be classified into. जैसे ये रॉक्स बनते हैं उसके हिसाब से इग्निशियस रॉक को क्लासिफाई किया गया है. Molten material or magma which reaches the earth's surface as lava through volcanic vents or fissures, cools and solidifies forming extrusive or volcanic rocks. जो मोल्टन मटेरियल और मैग्मा होता है जब वो अर्थ की सरफेस पे पहुंचता है एज लावा वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण, तो वो कूल हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है और वॉल्केनिक रॉक या एक्सट्रूसिव रॉक्स बनाता है. When the lava is exposed to air, it cools rapidly and fine-grained crystalline rocks are formed, such as basalt and pumice. तो जो आपका लावा है जब वो बाहर आता है और हवा के कारण वो जल्दी से ठंडा होने लग जाता है, तो फाइन ग्रेन्ड और क्रिस्टल का रॉक बनता है. और वो रॉक्स कौन से हैं? बसाल्ट एंड प्यूमाइस. Molten material or magma may also cool and solidify below the earth's surface to form intrusive or plutonic rock. तो जो मोल्टन मटेरियल है जरूरी नहीं है कि हमेशा लावा के थ्रू, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आए. कभी कभारी क्या होता है, जो मैग्मा होता है या मोल्टन मटेरियल होता है वो अर्थ की लेयर के अंदर ही क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है. और इन्हीं रॉक्स को कहते हैं इन इंट्रूसिव एंड प्लूटोनिक रॉक्स. As the molten material within the earth cools slowly, larger crystal or coarse grain crystalline rocks are formed. For example, granite and dolerite. तो जो मोल्टन मटेरियल होता है अर्थ के अंदर वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और लार्ज क्रिस्टल और कोर्स्ड ग्रेन
आपके वो रॉक्स के फॉर्म हो जाते हैं। और इसी रॉक्स के टाइप्स हैं ग्रेनाइट एंड डोलेराइट। Igneous rocks are usually crystalline in structure as well as hard and compact. जो igneous rock होता है वो usually crystalline होता है, crystals होते हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर में, और वो हार्ड और कॉम्पैक्ट भी होता है। जब हम कोई चीज फायर में पकाते हैं तो वो हार्ड हो जाती है और सॉलिडिफाई हो जाती है। दे डू नॉट अलाउ वाटर टू प्री लोकेट थ्रू देम। वो वाटर को अलाउ नहीं करते कि वहां पे वो जमे। दे डू नॉट फॉर्म अ लेयर, और ये लेयर भी फॉर्म नहीं करते। दे डू नॉट कंटेन रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉसिल्स विद इन देम। तो इनमें जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन जो फॉसिल्स होते हैं वो भी नहीं होते। किसमें? इग्निशियस रॉक में नहीं होते। Sedimentary rocks. The word sedimentary is derived from the Latin word sediment, which means settle down. तो जो sedimentary rocks है वो Latin word sedentum से आया है, जिसका मतलब है settle down, नीचे बैठ जाओ। Let's learn how they are formed. अब पढ़ते हैं इनके बारे में कि कैसे ये बनते हैं। Fragmented of rocks, decayed remains of plants and organisms, and salts or chemicals are carried by running water, winds, and moving ice, and are deposited in depression underwater. जो छोटे छोटे पीसीस होते हैं फ्रेगमेंट्स रॉक के, जो एनिमल्स और प्लांट्स के ऑर्गेनिजम्स के डिकेड पार्ट होते हैं, सॉल्ट होता है और केमिकल्स होते हैं, वो रनिंग वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू या मूविंग आइस के थ्रू वो धीरे धीरे डिपॉजिट्स होने लग जाते हैं वाटर में। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम these deposits materials or sediments continuously accumulated in layer। तो धीरे धीरे एक के बाद परत पे परत बनती जाती है, लेयर्स पे लेयर फॉर्म होती जाती है। दे आर देन कंप्रेस्ड एंड हार्डन with the aid of cementing materials such as lime to form mechanical, organic and chemical sedimentary rocks। तो धीरे धीरे इनमें क्या होता है, ये हाई प्रेशर में आती हैं और धीरे धीरे ये हार्ड होने लग जाती हैं। और जब इस पे लाइम, जो चूना होता है, उसकी परत जमनी शुरू हो जाती है लेयर पे लेयर, तो हमारा सेडिमेंट्री रॉक तैयार हो जाता है। Therefore, they belong to the secondary group of rocks। तो हमने पढ़ा था इग्निशियस रॉक प्राइमरी ग्रुप है और ये सेकेंडरी ग्रुप है रॉक्स का। Sedimentary rocks are softer than igneous rock and their structure is not crystalline। जो sedimentary rock है वो igneous rock से soft होते हैं और इनका structure crystalline नहीं है। Such rocks at times also contain fossils in between the layer of sediments। बिकॉज ऑफ ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से भी बना होता है, तो इन रॉक्स में कभी कभारी ये फॉसिल्स भी कंटेन करते हैं। सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, मडस्टोन, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन एंड कोल सम एग्जाम्पल है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के। मेटामॉर्फिक रॉक। The word metamorphic is derived from the Latin Greek word metamorphosis, which means change of form। मतलब जब चेंज होगी फॉर्म की तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे। When existing igneous and sedimentary rock change their chemical and physical form due to intense heat and pressure, they form metamorphic rock। जब जो एग्जिस्टिंग इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक अपनी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देते हैं बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर के कारण, तो उसको कहते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। These processes may take millions of years, और इसमें millions of years लग जाते हैं। Interestingly, all metamorphic rocks make extremely good building and construction material। जो ये वाले रॉक्स होते हैं वो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होते हैं। लाइक मार्बल आपका क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक।
M for marble and M for metamorphic rocks. Due to the effect of heat and pressure, they are often bended or layered. क्योंकि हीट और प्रेशर का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये या तो बेंडेड होते हैं या लेयर्ड होते हैं. Metamorphic rocks are usually crystalline in structure and perhaps the hardest of all rock. क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक आपका यूजुअली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए ये हार्डेस्ट रॉक होता है इग्निशियस और मेटामॉर्फिक के अकॉर्डिंगली. They really have pores and does not allow water to percolate through them. तो जो आप इनमें जो पोर्स होते हैं वो वाटर को अलाउ नहीं करते अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में. दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, और इनमें फॉसिल्स भी नहीं मिलता. किनमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. दिस ग्रुप्स आल्सो बिलोंग्स टू सेकेंडरी ग्रुप्स. जैसे हमारे सेडिमेंट्री रॉक सेकेंडरी ग्रुप में थे, वैसे ही मेटामॉर्फिक रॉक्स भी सेकेंडरी ग्रुप में ही आते हैं. They are formed from existing igneous and sedimentary rock. क्योंकि ये igneous और sedimentary rock से बने होते हैं. For example, granite changes into gneisses, sandstone to quartzite and limestone to marble. तो ग्रेनाइट चेंज हो जाता है आपके gneisses में, सैंडस्टोन चेंज हो जाता है क्वार्ट्जाइट में, और जो लाइमस्टोन होता है वो चेंज हो जाता है आपके मार्बल्स में. आप देखेंगे मंदिरों में, घरों में बहुत सारे लोग मार्बल के फ्लोर्स जलवाते हैं. द रॉक साइकिल. अब ये रॉक साइकिल कैसे होती है? विद हीटिंग, मेल्टिंग, इरोशन, डिपोजिशन एंड केमिकल एक्शन. One group of rocks leads to the formation of another group, and this cyclic formation and development of three types of rocks is known as rock cycle. तो जो जब हीट करा जाता है, मेल्ट होता है, इरोजन होता है, डिपॉजिट्स होते हैं, केमिकल एक्शन होता है, तो एक रॉक से दूसरे रॉक की फॉर्मेशन होती है, और इसी साइक्लिक फॉर्मेशन और डेवलपमेंट को हम रॉक साइकिल कहते हैं. इग्निशियस और प्राइमरी रॉक्स आर फॉर्म फर्स्ट. हमने पढ़ा है कि इग्निशियस और जो प्राइमरी रॉक है वो सबसे पहले बनते हैं. After being broken down into sediments by natural process like weathering and erosion, these are deposits and compact to form sedimentary rocks. जैसे जैसे ये जो रॉक्स होते हैं वो वेदरिंग और इरोजन के कारण, नेचुरल प्रोसेस के कारण सेडिमेंट्स में बदलते हैं, तो ये डिपॉजिट होते हैं और एक कॉम्पैक्ट रॉक फॉर्म करते हैं, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक. After being subjected to great heat and pressure, igneous and sedimentary rocks are transformed into metamorphic rock. जब इन रॉक्स पर हीट और प्रेशर बहुत ज्यादा अमाउंट में आता है, तो जो इग्निशियस और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में. Sedimentary rocks may be buried again and melted due to heat from the interior of the earth and form magma. जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनको वापस अंदर गाड़ा जा सकता है, बरेड किया जा सकता है और मेल्टेड हो जाते हैं. ये क्यों? क्योंकि हीट के कारण, और इंटीरियर अर्थ में चले जाते हैं किस फॉर्म में? मैग्मा की फॉर्म में. मेटामॉर्फिक रॉक्स में बी ब्रोकन डाउन इनटू सेडिमेंट्स due to natural forces, later forming sedimentary rocks and even buried again to form magma. जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनको वापस तोड़ के सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और बाद में वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? मैग्मा की. Thus, a cyclic relationship exists between these three rocks group. इसलिए हम कह सकते हैं कि एक साइक्लिक रिलेशनशिप है इन तीनों रॉक्स के ग्रुप्स में. The entire process is powered by the energy of sun and involves process both on the surface as well as in the interior of the earth. जो entire process है वो किसकी पावर की वजह से हो रहा है? सन की पावर की वजह से हो रहा है, और जो अंदर है सरफेस पे भी और सरफेस के अंदर भी, अर्थ के अंदर भी. So this is the cyclic rock formation.
So all these are the layer of sedimentary rocks forms strata. Igneous rock forms surface, weathering and erosion, then transportation by wind and rain, deposition. Sedimentary rocks फॉर्म होते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म किससे होते हैं? हीट और प्रेशर से होते हैं. सी बेड्स में सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं आपको, और इग्निशियस रॉक फॉर्म होते हैं इनसाइड द अर्थ. The process of rock formation. Granite is an igneous rock. It is rich in mineral quartz. Granite is the most common type of rock in the earth crust. जो granite है वो most common rock है earth crust में. Coal is sedimentary rock that have a substantive amount of carbon and its compound. जो कोल है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, वो छोटे छोटे कार्बन्स के पीसीस को मिलकर स्ट्रॉन्ग और हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फॉसिल फ्यूल भी है. कैटिस्ट इज द मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म फ्रॉम मडस्टोन. तो ये रॉक मडस्टोन और लाइमस्टोन से बना होता है. इट कंसिस्ट ऑफ फाइन बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स मिनरल. क्योंकि ये दो आपके मडस्टोन और लाइमस्टोन दोनों को मिलाकर बना होता है हाई हीट प्रेशर की वजह से, तो ये आपका डिफरेंट कलर्स में मिलता है. यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, कि रॉक्स का यूजेस और मिनरल का यूजेस क्या है. रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स which are of immense value to humans. They are used to make roads and houses. Rocks बहुत अलग अलग तरह से बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए. ये रोड्स और हाउसेस बनाने में काम आते हैं. रॉक्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल. जो रॉक्स हैं वो बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज आते हैं, जैसे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल. Minerals such as natural gas, coal and petroleum or fossil fuels are sources of power. तो minerals जो जैसे natural gases हैं, coal है, petroleum है या fossil fuel है, ये क्या है? सोर्स है पावर्स का. मतलब इंसान इनसे बहुत सारी चीजें करते हैं. Besides, rocks have also made agriculture possible as soil is formed by decomposition and degradation of rocks. तो जब रॉक्स आपके छोटे छोटे पीसेस में वेदरिंग ड्यू टू वेदरिंग की वजह से टूटते हैं, तो हमारी क्या फॉर्म होती है? सॉइल फॉर्म होती है, जो हमारी हेल्प करती है किसमें? एग्रीकल्चर करने में. रॉक्स विद मिनरल्स कंटेंट ओर आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. आयरन्स, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एंड सो ऑन. जो रॉक्स होते हैं जिनके पास मिनरल्स होते हैं या ओर्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका, गोल्ड, यूरेनियम और भी बहुत कुछ. केमिकल्स फाउंड इन रॉक्स आर आल्सो यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स. जो केमिकल्स हमारे रॉक्स में मिलता है वो हम फर्टिलाइजर्स के रूप में भी यूज करते हैं. Many rocks contain fossils, which gives us important insight into life in past. जो बहुत सारे रॉक्स हैं उनमें फॉसिल्स होते हैं. ऐसे ये फॉसिल्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है प्रीवियस लाइफ के बारे में. If you like the way as I'm teaching, so do like and do subscribe my YouTube channel Education for Kids. एक लाइक तो बनता है. Thank you so much.